Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, this is our lecture number 24 and the topic that we are going to discuss today is inverse Laplace transform. In last lecture we talked about the Laplace transforms and what are the transformations and how they are helpful in solving ordinary differential equations. Now in this lecture we will be talking about the inverse Laplace transforms and what is their usage and a few other concepts. Let's talk about the inverse Laplace transform introduction. Inverse Laplace transform, we talked about the Laplace transform. Laplace transform, what we're doing, they were converting your function from one variable into another. For example, your function was apparently in t, you change the function from t and the function has been converted into the form of fs. Inverse Laplace transform introduction. In this section we take few small steps into an investigation how Laplace transform can be used to solve certain type of equation for an unknown functions. We begin the discussion with the concept of inverse Laplace transform, more precisely the inverse of a Laplace transform fs. After some important preliminary background material on Laplace transform of derivatives ft, f double dash of t, we will then illustrate how both Laplace transform and inverse Laplace transforms come into play in solving some ordinary differential equations. The basic functions whose Laplace transforms could be given inverse Laplace transform. अगर आपकी Laplace transform जो है वो f of s में रिप्रेजेंट होती है किसी फंक्शन f t की, तो उसकी इनवर्स Laplace transform जब हम लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो है वो बैक हो जाता है. For example, if fs represents the Laplace transform of a function, then Laplace transform of f of t is equal to fs. We then say that f of t is the inverse Laplace transform of the function f of s. We write f of t is the inverse Laplace of fs. For example, from example 1, 2 and 3, we have the functions over here. अब यहाँ पर आप देखेंगे Laplace transform जब आपके पास 1 की थी तो that was 1 by s. So अगर आप इसके ऊपर देखिए इस एक्सप्रेशन पे जब आप इनवर्स Laplace transform लगाते हो फॉर एग्जांपल, तो इनवर्स Laplace of transform function gives you the original function. Similarly कुछ बेसिक फंक्शन जिनकी आपने इनवर्स Laplace फाइंड आउट की थी, सो ये Laplace transform फाइंड आउट की थी, उनकी आप जब इनवर्स Laplace लेते हो तो वही फंक्शन आपको दोबारा मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल Laplace transform of t was 1 over s square. सो अगर 1 over s square है तो उसकी Laplace transform जो होगी वो आपके पास 1 over t होगी. इसी तरह से जब आपके पास Laplace transform of e power minus 3t 1 over 3s 1 over s power 3 है, तो इनवर्स Laplace जो है वो आपके पास जो आएगी वो उसका फंक्शन e power minus 3t आ जाएगा. इसी तरह से कुछ अदर जो आपने बेसिक फंक्शन जिनकी Laplace ट्रांसफॉर्म्स डिस्कस की थी उनकी इनवर्स Laplace की जब आप बात करते हैं तो आपको वही वाले फंक्शंस वापस मिल रहे होते हैं जिनकी आपने प्रीवियसली Laplace ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट की है. फॉर एग्जांपल 1 की Laplace ट्रांसफॉर्म आपके पास 1 by s है. इसी तरह से t पावर n है तो उसकी इनवर्स Laplace of n factorial over s n plus 1 है. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 1 over s पावर 7, तो वो किसकी Laplace ट्रांसफॉर्म होगी s पावर 6 t पावर 6. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समटाइम्स यू विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द मिसिंग टर्म्स. लाइक अगर आपके पास 1 over s पावर 7 ही हो तो आपके पास मिसिंग क्या होगा, आपके पास 6 फैक्टोरियल होगा, तो आप 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, 6 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर लो, तो आपका ये जो काम है वो आसान हो जाता है. इन द सिमिलर मैनर आपके पास 1 over अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन 1 over s माइनस a है तो उसके लिए लास्ट इनवर्स उसके पास आप अप्लाई करते हो तो दिस वुड बी e पावर अल्फा t. सिमिलरली k over s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है तो वो किसकी बनती है, साइन k t की. अगर ऊपर s है और s k प्लस k स्क्वायर है तो वो cos k of t के इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म है. लाइक द सेम वे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो आपके पास k over s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है तो उसकी आपके पास इनवर्स Laplace आ जाती है साइन हाइपरबोलिक k t. एंड g आपके पास की फंक्शन है cos हाइपरबोलिक k of t, तो Laplace इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. कुछ एग्जांपल्स इनवर्स Laplace के हम करते हैं.
वी विल कटिंग द थिंग्स टू शॉर्ट इन दिस लेक्चर, ताकि हम इन चीज़ों को हम करके हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। एग्जाम्पल 1 देखें, इसमें आपके पास लाप्लास इन्वर्स किसका आपने लेना है 1/s⁴। अब ये s⁴ है तो आपके पास इसमें मिसिंग क्या है 4 फैक्टोरियल। अगर ये 4 फैक्टोरियल ओवर s⁴ होता तो हम कहते हैं दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s⁴ would be the Laplace transform of t⁴ अगर आपके पास ऊपर 4 फैक्टोरियल हो तो हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द Laplace transform of this function। सो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे उसमें क्या कर रहे हैं। टू मैच द फॉर्म गिवन इन द पार्ट बी of the theorem 7.2.1 we identify that n+1 is equal to 5। जो भी डिनोमिनेटर में s की पावर है वो उसका क्या है, उसकी 1 एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया हुआ है। तो n⁴ आपके पास है तो 10 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आपके पास इसका जो आंसर आ गया। टू मैच द फॉर्म गिवन इन द पार्ट डी द थ्योरम 7.2.1। अब यहाँ पर आप देखें कि s² प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए k² होता है, तो यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर आपके पास 7 पड़ा हुआ है। वी आइडेंटिफाई दैट k² इज इक्वल टू 7 सो दैट k इज इक्वल टू √7। वी फिक्स अप द एक्सप्रेशन बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √7। 1/√7 Laplace inverse of √7 s² plus 7 1/√7 and sin inverse 7 of √7 of टर्म वाइज डिवीजन एंड लिनियरिटी। आपके पास अगर आपके पास कुछ टर्म एक्सप्रेशन इस तरह क्या रहते हैं जो थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगे हैं, लेकिन अगर आप उनको सिंप्लीफाई करो तो यू रीच ऑन सिंपल कंक्लूजन एंड यू कैन हैंडल देम फॉर इन अ फॉर बेटर वे। तो अब इसको देखें, दिस इज -2s + 6/s² + 4। रफली स्पीकिंग हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर्स को वो सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी फर्स्ट rewrite the given function of s as to expression by means of term wise division and then use 1। अब -2s + 6/s² + 4 है तो हम क्या करेंगे, -2s को लग कर लेंगे और 6/s² + 4 को लग कर लेंगे। मीन्स पहले हम उसको टर्म वाइज डिवीजन में कर लेंगे कि अलग अलग उसके न्यूमरेटर्स के साथ उसको लिख लिया, फिर जो भी उसमें हमारे पास स्केलर्स होंगे उनको हम बाहर ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिनियरिटी। तो Laplace inverse of -2s/s² + 4 + 6/s² + 4। हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनता है वो है -2 Laplace inverse of s/s² + 4 6/2 Laplace inverse of 2/s² + 4। अब ये आपके पास अगर न्यूमरेटर में s होता है तो ये आपके पास cos का Laplace ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आपके पास ऊपर एंगल गिवन है तो ये किसका होगा, साइन का। So this is -2 cos 2t and this is +3 sin 2t। So this is how you can handle these kind of the terms with a little bit addition and multiplication। हम चीज़ों को जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं। फिर अगली बात ये आती है कि अगर हमारी Laplace ट्रांसफॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं तो उनको हमने कैसे हैंडल करना है। Partial fractions you people are done with in your FSC when you people were solving integration, basic जो आप इंटीग्रेशन रेशियल फंक्शंस के लेते हैं तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में हम जो केसेस उसके बनाते हैं उसके डिनोमिनेटर्स के हिसाब से बनाते हैं। पहला केस उसका आता है कि जब लीनियर उसके फैक्टर्स होते हैं और सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दूसरा आपके पास होता है लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स, मीन्स s⁻³ के ही 2 इसके 3 स्केल गिवन है कि s-3 थर्ड केस वाज इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये जो एग्जांपल आपके सामने है इसमें उन्होंने जो फैक्टर्स दिए हुए हैं डिनोमिनेटर में फैक्टराइज किया हुआ है डिनोमिनेटर को, और फैक्टर्स जो बने हैं वो आपके पास रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है, लीनियर हैं और आपके पास डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेकिन बाकी दो केसेस भी आपके सामने आ सकते हैं। करना आपने उसको इसी तरह से जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो एंड आपको उसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि हमने Laplace इन्वर्स अगर हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशंस की आ जाती है तो हम क्या करेंगे, s² + 6x + 9 s-1 s-2 एंड s+4 है तो आप उसको a/s-1 + b/s-2 + c/s + 4 है तो a/s-2 + s+4 b/s-1 × s+4 c/s-1 × s-2
s-1, s-2 एंड s+4 आपके पास आ गया। आप इसको सॉल्व करो और इसमें कोफिशिएंट किसके कंपेयर करते हैं, जो भी इसमें वेरिएबल है। अब इसमें वेरिएबल क्या है, s है, तो s के कोफिशिएंट्स आप कंपेयर कर लें, s स्क्वायर प्लस के करें, फिर s के करें, फिर कॉन्स्टेंट्स के करें, तो आपके पास a b और c जो भी हैं वो उसकी आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब आप वैल्यूज़ को निकाल लेते हो तो जो आप अपना जो एक्सप्रेशन है उसको रीराइट करते हैं। रीराइट करने से जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन था, जो आप कहें कि ये वाला जो एक्सप्रेशन था वो इसमें कन्वर्ट किया और इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया। जब आपने उसको इस फॉर्म में लिख लिया तो हम इसके बाद इसके ऊपर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। एंड देन दे से दैट इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो भी लीनियर है, तो हम जो इसमें फैक्ट जो भी हमारे स्केलर्स होंगे उनको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और हम बाकी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे -16/5 है इनवर्स लेप्लास ऑफ 1/s-1, 25/6 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2 एंड 1/30 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1। अब यहाँ पे ये s-1 है, तो ये हम क्या यहाँ पर e⁻at वाला थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो e⁻1t, अगर प्लस होता तो e⁻t हो जाता। यहाँ पे अब आपके पास s-2 है तो e⁻2t, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा e⁻4t। थिंग्स वुड बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इन फ्यू केसेस, और वहाँ पे हमें कुछ टेक्निक्स, कुछ थ्योरम्स, कुछ एप्लीकेशन जो है वो लगाना पड़ेंगी, और उनको भी हम देखते जाएंगे कि साथ साथ अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाती हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए या इनवर्स लेप्लास लेते हुए, तो उनके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सा थ्योरम या कौन सी टेक्निक लगाकर उसको हम अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दरमोर लेप्लास इनवर्स एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम दोनों लेना सीख लेते हैं तो ये दोनों हमने वाइस वर्सा एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में हमने इनको लगाना होता है। अच्छा, अब अगली चीज़ जो थोड़ी सी जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं आज वो है ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो की है वो सिंपल फंक्शंस की है। ऐसे फंक्शंस जो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन जो आप कहें, या मोनोमियल्स जो हैं उनको आप कह सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस आ जाते हैं। अब ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव, इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक्चुअली यही वो चीज़ है जिसको हमने आगे जाकर यूज़ करना है, या जिसके लिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो सीखते हैं। एज वी पॉइंटेड आउट इन द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, आवर इमीडिएट गोल इज टू यूज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारा जो एक्चुअल काम ये है कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टू दैट एंड वी नीड टू एवेलुएट द क्वांटिटीज सच एज, हमने उसके लिए हमें क्या करना आना चाहिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स की लेनी आनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, इफ f dash is continuous, मींस अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, therefore 2 is greater than or equal to 0, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने उसकी लेकर देखते हैं कि उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आती है। 0 to infinity e power minus st f dash of t dt, e power minus st f of t 0 to infinity, ये आपके पास आ गया, एंड s into 0 to infinity e power minus f st dt। अब ये इतनी टर्म तो जो है वो किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, f of t का। हम बात करते हैं इसके ऊपर। इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू पीपल, जब आपने e पावर माइनस एस टी की इन्फिनिटी लिमिट को इम्पोज करते हो तो आप क्या करते हो, एक्चुअली इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या लिखते हो, f of t लिखो और e पावर माइनस एस टी को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। जब आप इसमें इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट होते हुए आपके पास f of t ओवर e पावर इन्फिनिटी है। वैसे तो जनरली स्पीकिंग यहाँ पे आप एक दफ़ा लॉपिटल रूल भी लगाते हो फिर आप इसको करते हो, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास जनरल फंक्शन f of t है, तो आप क्या करो, यहाँ पर e पावर इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी देगा तो सम फंक्शन ओवर इन्फिनिटी विल गिव यू 0, तो पहली टर्म तो आपके पास 0 होगी। जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आता है, माइनस e पावर 0 1 एंड f of 0, सो दिस कम्स फ्रॉम देयर। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, s लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f t माइनस f of 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था s की पावर 1 है और लेप्लास ट्रांसफॉर्म f t की है, और माइनस f of 0 क्या है, जो फंक्शन था उसमें आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इसी तरह से अच्छा, अब इसको सीखने से पहले एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ पर भी e पावर माइनस एस टी जो है किसी और फंक्शन के कम्बिनेशन में आएगा तो कहते हैं कि जब इसमें लिमिट इन्फिनिटी जब इम्पोज करते हो तो इसका आंसर 0 आता है।
Similarly, with the aid of equation 6, हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जब डिस्कस करते हैं तो 0 to infinity e power minus st f of t, तो e power minus st f dash of t 0 to infinity s into 0 to infinity e power minus st f dash of t dt. अब if you people look at this expression, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. जब इसके इक्वल है तो हम इतना एक्सप्रेशन तो इसकी जगह पे लिख देते हैं. अब e पावर माइनस एस टी इन्फिनिटी वाली टर्म में 0 होना है, और 0 जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसने आपको 1 देना है. माइनस e पावर 0 1 f डैश ऑफ 0 ये आ गया, एंड s लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t, s इंटू f ऑफ s एंड माइनस f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0, s इंटू s ऑफ s माइनस f ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ 0. अब इसको आप ज़रा एक्सटेंड करें या इसको एक्सपेंड करेंगे ज़रा तो दिस विल बिकम एच स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0. सो आपके पास जो एक्सप्रेशन बन जाता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है. थोड़ा सा हम पैटर्न पे गौर करें तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एस स्क्वायर है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी बनती है? इस एफ ऑफ फंक्शन की, माइनस एस एफ ऑफ 0 फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे s की पावर 0 और f डैश ऑफ 0. मीन्स सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर है तो यहाँ पे s स्क्वायर आता है, साथ में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन s की पावर कम होती है और फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव्स बढ़ते जाते हैं. यहाँ पे s की पावर 0 है, f ऑफ 0 है, यहाँ पे s की पावर 0 और f डैश ऑफ 0 है. इसी तरह से अगले देखते हैं हम, अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसको हम देखते हैं s पावर 3 f ऑफ s माइनस s के आ गया f ऑफ 0 माइनस इसकी s की पावर कम हो रही है f ऑफ s s f डैश ऑफ 0. यहाँ पे f ऑफ 0 था, यहाँ पे f डैश ऑफ 0 हो गया, यहाँ पे s की पावर 0 f डबल डैश ऑफ 0. So this pattern will continue and we can write down the expression for nth order derivatives. Recursive nature of Laplace transform of derivative of a function f should be apparent from the result in 6, 7 and 8. The next theorem gives the Laplace transform of the nth order derivative of the function. The proof है वो हमने नहीं करना, the proof is omitted. That is beyond our scope. We will not be having too much lengthy expressions. We just need the application of this theorem in order to solve the ordinary differential equations. अब अगर आपके पास है f dash of 0 f, अगर आपके पास n फंक्शन जिसका अपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसके पहले n-1 डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उनका डिफाइन होना चाहिए. एंड इफ f n of t is a piecewise continuous on 0 to infinity, then Laplace transform of f n of t is sn f of s minus sn power 1. वही n की nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो s की पावर n है, फिर उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर एस एन पावर माइनस 1 है, ओरिजिनल फंक्शन पे 0, फिर एस पावर n माइनस 2 f डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन f n माइनस 2 ऑफ 0, एंड वेयर f of s is equal to Laplace transform of f of t. So you people will learn that कि पहले आज के लेक्चर में तो हमने इनवर्स लेप्लास को डिस्कस किया है. कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप डेरिवेटिव के भी कर लें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन करना आ जाए. आगे जाके हम ये देखेंगे कि हमने इन डेरिवेटिव्स को जिनके में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं, हाउ दे हेल्प अस टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. उसके बाद आगे ये आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक्स. एक्सरसाइज 7.2 में आपके पास कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हैं आपके लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास होंगे सॉल्यूशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, वो वाले क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे आपके पास. सो जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड practice the question involving in which the Laplace transform of derivatives is included. When you are handy, then in tomorrow's lecture we will be talking about the solution of ordinary differential equation while using Laplace transform and inverse Laplace transform. And unless or until you will don't solve the questions, you cannot do them in a better way. So better is that if you will find any problem, find any query, you will discuss it with me on any forum instead of keeping it in your mind or don't even touching the questions and you will thinking that they are very simple and we can do it. We cannot do it without any practice. So please be good at practice and solve them. Next thing we will be talking about
tomorrow. Thank you so much, students, and Allah Hafiz.